Welcome back students and we will continue with the scene 2. Last class में या last video में हमने देखा था कि we have that Brutus and Cassius are talking about Caesar and the weaknesses of Caesar. Cassius ने he has given him 2-3 examples to show how feeble, how weak Caesar is mentally and physically both and is not fit to rule Rome. वो रोम के लायक ही नहीं है. And also trying to convince Brutus that his forefathers, the forefathers or the ancestors of Rome, how brave they were, how strong they were, that they have saved themselves from the flood of the Deculion. And Rome is not a place that could be ruled by a single hand, by a single man. A single man or dictator can never control Rome. Otherwise, what the generation will say, what the ancestors will say, their forefathers will say, कि once there was a Brutus, कि लोग कहेंगे कहानी बनाएंगे कि Brutus एक आदमी था who has not done anything to stop that man, to stop that ambitious, powerful man Caesar, but he has allowed devil to rule. यहाँ Caesar को वो devil बुलाता है, that he's not a man even, he's not a man to rule Rome. Now, फिर से the sounds of trumpet is coming. Now is it Rome indeed the room enough? तो ये last class हमने पढ़ा था. The internal devil to keep his state in Rome as easily as a king. And Brutus has allowed that man easily to go and sit on the throne of Rome. Brutus. That you do love me, I am nothing jealous. What you would work me to, I have some aim. How I have thought of this and of these times, I shall recount hereafter for this present. I would not. So with love, I might entreat you. तो क्या बोलता है Brutus? That you love me, I understand. I have no doubt that you love me. And I don't think of the other, in that other way. I have full faith on you, Cassius. लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? I can little think about it. I have some idea. And whatever you have told me, तुमने जो जो मुझसे कहा, आज अभी इस present situation पे, I will positively think about it. I will consider what you have told and shall listen patiently to what you have to say. But I would not, so with love I might entreat you. लेकिन अभी उसको जाना है, yet to convey, और कुछ कहना है उसको. But any further moved, what you have said I will consider, and what you have to say I will with patience hear you and find a time. Both meet to hear and answer with such high things. Then till then, my noble friend, chew upon this. Brutus had rather be a villager. तो यहाँ तक क्या बोलते हैं Brutus कि तुम मुझसे प्यार करते हो. I don't have any doubt you think of me, you love me and you're a loyal friend of me. तुम जो कह रहे हो, I have little senses, मुझको समझ में आ रहा है कि तुम्हारा एम क्या है इस बात को बोलने का. तुमने जो कहा मैंने सब सुना पेशेंटली. जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तुम जो कहना चाहते हो और अगर कुछ कहना चाहते हो तो आई विल हियर इट पेशेंटली. देयर विल बी अ मीटिंग, एक मीटिंग हुआ जहाँ तुम रहोगे हम रहेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स, दिस सीरियस मैटर. टिल देन माई नोबल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस. तब तक जब तक हम लोग मीट नहीं करते, एक मीटिंग नहीं होता, तब तक इसके बारे में सोचो, थिंक, एंड आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट इट. Brutus had rather be a villager than to repute himself as a son of Rome under these hard conditions as this time is like to lay upon us. अगर इस हार्ड टाइम्स में, अगर इस मुश्किल टाइम में अगर ब्रूटस कुछ नहीं कर पाता है अपने कंट्री के लिए, अपने पीपल के लिए, देन ब्रूटस को कोई हक ही नहीं है सिटीजन बुलाने का, अपने आप को एक नोबल पर्सन बुलाने का. ही वुड बेटर बी अ विलेजर, अननोन पर्सन, a person without any name, without any fame. तो वो he would like to be a villager than to be a citizen of Rome. So that was the feeling of Brutus. Cassius. I'm glad that my weak words have struck, but thus much show of fire from Brutus. बोले कि थैंक गॉड कि मेरे ये फीबल वर्ड्स, मेरी ये जो कहानियाँ थी, ये कुछ कमज़ोर, एक ट्राई था. आई मेड अ ट्राई to make you understand the present day situation, and that I think Brutus को थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया. You have little time, you have at least you have started thinking about it. Brutus, the games are done and Caesar is returning. तब क्या देखे कि Caesar वापस आ रहा है, शायद गेम्स सारे ओवर हो गए हैं. Cassius, as they pass by, pluck Casca by the sleeve. अब जैसे ही वो लोग सब निकल जाते हैं सामने से, कैशियस एक और कैरेक्टर को, यहाँ वी विल कम अक्रॉस वन मोर कैरेक्टर, कैस्का. कैस्का जो है इस स्टोरी का इज अ वेरी सॉसी फेलो. मतलब वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. वो हमेशा घुमा के जवाब देता है. ही ऑलवेज कीप इन वाइनिंग द आंसर्स.
और वही इस कैरेक्टर को इस स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। नाउ तो केशियस जानने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, ही जस्ट पुल कैस्का बाय हिज स्लीव and he will after his sharp fashion tell you what had proceeded worthy no to read। और केशस क्या बोलता है कि चलो उसको रोकते हैं और देखते हैं वो अपने मज़ेदार स्टाइल में कैसे बताता है कि भाई आज क्या हुआ गेम्स में। री एंटर सीजर एंड हिज फॉलोअर्स, फिर सीजर और उसके फॉलोअर्स आते हैं। ब्रूटस, I will do so, but look you Cassius, the angry spot doth glow on Caesar's brow, and all the rest look like a chidden train. Calpurnia's cheek is pale and Cicero looks much ferret and such fiery eyes as we have seen him in the Capitol being crossed in conference by some senators। अब ब्रूटस क्या नोटिस करता है, बोलते कि हाँ सुनेंगे, कैस्का जो भी बोलेगा, the events that has taken place, we will listen to him, but just look now, look at the face of Caesar, देखो कैसे गुस्सा दिख रहा है उसके, एक उसके ब्रो के ऊपर एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, एंड बाकी जो लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं एकदम चुपचाप, बच्चों जैसे ट्रेन बना के चलते हैं, एकदम चुपचाप लाइन में जा रहे हैं। कल्पुनिया का फेस भी एकदम पेल है, इट इज लॉस्ट ऑल द ग्लोरी, ऑल द ग्लैमर। सिजेरियो एक और कैरेक्टर, उसको कैसा लग रहा है देखने में, ही इज लुकिंग वेरी एंग्री, एज इफ कि जब कोई उसको क्रॉस करता है, जब उसको क्वेश्चन करता है उसके सेनेट्स में, जैसे कि सेनेट जब जैसे पार्लियामेंट होता है जहाँ पे वो लोग मिनिस्टर्स और नोबल पर्सन्स लोग डिस्कस करते हैं मैटर्स, अगर वहाँ पे कोई उसको क्रॉस कर देता है वो कैसे गुस्सा से देखता है, बिल्कुल वही लोग सिजेरियो के पास, सिजेरियो के ऊपर है। तो वही ब्रूटस सोचेगा भाई क्या बात है केशियस। कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज। सीजर एंटोनियस, सीजर बुलाता है एंटोनियस को, एंटनी, सीजर, let me have men about me that are fat, sleek-headed, and such a sleep o nights। अब सीजर क्या बोलता है कि एंटोनियस सामने आओ और मेरे आसपास उन लोगों को रखो जो लोग थोड़े फैट होते हैं, men with smoothly brushed hair, जो लोग स्लीक हेडेड है, मतलब जो लोग खाते पीते लोग हैं, मतलब जिनको देख के लगता है कि भाई दे आर पीस लविंग पर्सन, उनका बाल अच्छे से कोम किया हुआ हो, नीट एंड क्लीन, और जो रात में सोते हैं। Yon Cassius has a lean and hungry look। उसको डाउट है केशियस पे, क्यों केशियस का लुक कैसा था, एक लीन एंड हंग्री, जैसे कि उसको कुछ चाहिए। उसके लुक्स में एक एक क्या फीलिंग होता था कि जैसे उसके मन में कुछ है और उसके फेस में क्या है, उसके जैसे डबल साइडेड लुक थे कि वो सोचता कुछ है बोलता कुछ है। ही थिंक्स टू मच, सच मेन एंड डेंजरस। अब सीजर क्या बोलते कि ये बहुत कुछ सोचता है, इसके लुक्स में है, and these men are dangerous। Antony, fear him not Caesar, he is not dangerous, he is a noble Roman and well given। बोले आप घबराओ मत, केशियस से आपको डरने का कुछ नहीं है, he is just a noble man of Rome। Caesar डर वर्ड जब यूज किया, would he were fatter but I fear him not। बच्चा अच्छा होता अगर वो थोड़ा मोटा होता, उससे पता चलता कि वो थोड़ा पीस लविंग पर्सन है, ही इज अ काम एट हिज हार्ट, उसके मन में शांति है, लगता है कि हाँ भाई वो खुश है, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। अब सीजर को अपने ऊपर वो जो इतना पावरफुल है वो केशियस से डरेगा, आई एम नॉट फियर, बट आई फियर हिम नॉट, येट इफ माई नेम वेर लायबल टू फियर आई डू नॉट नो द मैन आई शुड अवॉइड। एज सून एज दैट स्पेयर केशियस, ही रीड्स मच, ही इज अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन, ही लव्स नो प्लेस। अब क्या बोलता है कि अगर मेरा नाम किसी को डराता है तो वो अलग बात है, बिकॉज आई एम पावरफुल, आई एम एम्बिशियस, आई एम अ ग्रेट सोल्जर। अगर मुझसे कोई डरता है तो भाई वो अलग बात है, केशियस डर सकता है, लेकिन ये आदमी है, ही रीड्स मच, ये लोगों के एक्शंस देख के उनके कैरेक्टर को वो समझता है, ही रीड्स द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन बाय जस्ट वॉचिंग हिम, बाय ऑब्जर्विंग हिज एक्शंस को देख के उस आदमी के थॉट्स को वो पढ़ता है, वो रीड करता है, उसको कंट्रोल करता है। एंड ही लव्स नो प्लेस, वो एक आम आदमी की तरह नहीं है, वो कोई ड्रामा नहीं देखता, वो म्यूजिक नहीं सुनता। एज दाउ डोस एंटनी, ही हियर्स नो म्यूजिक, शेल्डम ही स्माइल्स, वो कभी कभी स्माइल करता है, एंड स्माइल्स इन सच अ सॉर्ट एज इफ ही मॉक्ड हिमसेल्फ एंड स्कॉन्ड हिज स्पिरिट। और कभी हंसता नहीं है, कभी हंसता भी है तो ऐसा लगता है कि वो मजाक उड़ा रहा है, अपने आप पे हंस रहा है। As he mocked himself and scorned his spirit, that could be moved to smile at anything, such men as he be never at heart says। तो जो लोग इस तरह के होते हैं, हंसते कम हैं,
ठीक है, उनके लुक में एक अजीब सी बात रहती है, वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, रीड करते हैं, उनके थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, दे आर नॉट हार्ट सीज, उनके मन में कभी पीस नहीं होता, दे आर जेलस, देयर हार्ट इज फुल ऑफ जेलस, whilst they behold a greater than themselves, वो जो दिखते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डीपर होता है उनके अंदर का थॉट्स, उनका मन, एंड therefore आर दे वेरी डेंजरस, इसलिए उस तरह का आदमी बहुत डेंजरस होता है। एक दुबला पतला सा दिखने वाला आदमी, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा चलता है उनके मन में। आई रादर टेल दी व्हाट इज टू बी फियर्ड, इस तरह का आदमी डेंजरस होता है, लेकिन हम तुमको बताते कि क्या चीज़ है, कि किससे डरना चाहिए। देन व्हाट आई फियर फॉर ऑलवेज आई एम सीजर, वो डेंजरस है, आदमी को उनसे डरना चाहिए, लेकिन मैं सीजर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। कम ऑन माई राइट हैंड फॉर दिस ईयर इज डेफ एंड टेल मी ट्रूली व्हाट दाउ थिंक्स ऑफ हिम, तो यहाँ पे पता चलता है कि सीजर का जो एक कान है राइट लेफ्ट, तो वो उससे उसको सुनाई नहीं देता, तो क्या बोलता है कि कम टू माई राइट साइड बिकॉज दिस वन इज दिस, फ्रॉम दिस आई कांट हियर, एंड टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ हिम। सीजर पूछता है एंटनी से कि तुम बोलो कि तुम केशियस के बारे में क्या सोचते हो। ट्रम्पेट साउंड एक्सॉन्ड सीजर एंड ऑल इज ट्रेन बट कैस्का, तो बस यही बातचीत होते होते जो भीड़ है वो आगे बढ़ जाता है, विथ म्यूजिक विथ पीपल फॉलोइंग, और इसी टाइम पे केशियस कैस्का को अपने पास रोक लेता है। ही स्टॉप्ड बाय पुलिंग हिज स्लीव, कैस्का यू पुल मी बाय द क्लोक, वुड यू स्पीक विथ मी, तुमने मेरे क्लोक को खींचा है, कपड़ों की खींच, तुम कुछ बात करना चाहते हो। ब्रूटस, ए कैस्का टेल अस व्हाट हैथ चांस टुडे, व्हाट सीजर लुक सो सैड, दैट सीजर लुक सो सैड, बोले कि भाई क्या हुआ, सीजर इतना सैड दिखता है, इतना गुस्सा दिखता है उसके चेहरे पे। कैस्का, व्हाई यू वेर विथ हिम, वेर यू नॉट, वे क्यों, तुम नहीं थे उसके साथ, तुम नहीं थे। ब्रूटस, आई शुड नॉट देन आस्क कैस्का व्हाट हैड चांस, तो अगर मैं वहां होता, देखता कि क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं तुमसे नहीं पूछता, आई वुड नॉट हैव आस्क्ड यू व्हाट हैज हैपेंड। कैस्का, व्हाई देयर वाज अ क्राउन ऑफर्ड हिम एंड बीइंग ऑफर्ड हिम ही पुट इट by the back of his hand thus and then the people fell a shouting, तो बोले क्यों, क्या होगा, सीजर को क्राउन ऑफर किया गया और सीजर ने उस क्राउन को हटा दिया, कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ही जस्ट रेफ्यूज टू टेक द क्राउन, और बस जैसे ही वो रेफ्यूज किया लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे, द पीपल फेल्ट शाउटिंग। ब्रूटस, व्हाट वाज द सेकंड नॉइज फॉर, ब्रूटस इंक्वायर करते, उसे पूछता रहता है कि भाई पहला बात समझ में आ गया, सेकंड टाइम क्यों शाउटिंग हुआ, क्यों लोग हल्ला कर रहे थे। कैस्का, वाई फॉर दैट टू, फिर से उसी के लिए। केशियस, दे शाउटेड थ्राइस, व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर, केशव को भाई 3 बार लोगों ने चिल्लाया, तीसरी बार क्यों हुआ। केशियस, वाई फॉर दैट टू, उसी के लिए। ब्रूटस, वाज द क्राउन ऑफर्ड हिम थ्राइस, एक क्राउन उसको 3 बार ऑफर किया गया था। कैस्का, ए मैरी वर्स्ट एंड ही पुट इट थ्राइस एवरी टाइम जेंटलर देन अदर एंड एट एवरी पुटिंग बाय माइन ऑनेस्ट नेबर्स शाउटेड, तो क्या बोलता है कि एक बार नहीं 3 बार क्राउन उसको ऑफर कर किया गया, और जितना बार ऑफर किया गया हर एक बार मोर जेंटली, मतलब जैसे कि बहुत स्लोली, बहुत आराम से उसने रिफ्यूज किया, एज इफ कि वो रिफ्यूज नहीं करना चाहता था, उसके हैंड्स, इट टुक ऑफ हिज हैंड्स वेरी जेंटली, और जितना बार वो रिफ्यूज किया उतना बार, उतनी ही बार लोगों ने प्रेज किया, हिज नेबर्स, दैट मीन्स द पीपल स्टैंडिंग नियर हिम, दे शाउटेड। केशियस, हु ऑफर्ड हिम द क्राउन, किसने ऑफर किया, वाई, एंटनी, उसका फ्रेंड सीजर का। ब्रूटस, टेल अस द मैनर ऑफ इट जेंटल कैस्का, द जेंटल कैस्का मतलब कैस्का, तुम थोड़े डिटेल से बताओ कि कैसे हुआ, कैसे ऑफर किया। कैस्का, आई कैन एज वेल बी हैंग्ड एज टेल द मैनर ऑफ इट, इट वॉज मोर मेयर फुलरी, आई डिड नॉट मार्क इट, बोलो कि मुझे लटका दो, मुझे हैंग कर दो, रस्सी से लटका दो, क्योंकि जो कुछ हुआ ये लग रहा था एकदम एक फुलिश एक इवेंट हुआ, इट वॉज वेरी फुलिश, नेग्लिजिबल इवेंट, देखने का मन नहीं करता है, हाँ हमको तुम लटका दो कहीं पे, फांसी दे दो। आई डिड नॉट मार्क इट, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। आई सॉ मार्क एंटनी ऑफर हिम अ क्राउन, पर मैंने देखा कि एंटनी ने उसको एक क्राउन ऑफर किया। येट इट वॉज नॉट अ क्राउन नीदर, इट वॉज वन ऑफ द कॉरोनेट्स, बिल्कुल क्राउन नहीं था, वो कॉरोनेट था, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह जैसे बनाते हैं एक सर पे ऐसे रखने के लिए, तो वैसे गोल तरह का, वो क्राउन नहीं था, मुकुट नहीं था, लेकिन एक राउंड कोरोनेट था, रिंग जैसा। नाउ एंड एज आई टोल्ड यू ही पुट इट बाय वंस, बट फॉर ऑल दैट टू माय थिंकिंग ही वुड
फेन हैव हैड इट। बोले ऐसा लग रहा था कि उसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछा जाए, उसका रिएक्शन देख के लग रहा था मेरे ओपिनियन से कि सीजर को वो क्राउन चाहिए था। देन ही ऑफर्ड इट टू हिम अगेन, एक बार फिर से उसको ऑफर किया गया। देन ही पुट इट बाय अगेन, एक बार फिर से उसने रिफ्यूज किया। बट टू माई थिंकिंग ही वॉज वेरी लोथ टू ले हिज फिंगर्स ऑफ, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाथ हटाना नहीं चाहता क्राउन से, लेकिन सिर्फ पब्लिक फिगर के लिए, पब्लिक के सामने दिखाने के लिए उसने हाथ को हटा दिया क्राउन से। एंड देन ही ऑफर्ड इट इन द थर्ड टाइम, तीसरी बार। He put it in the third time by, and still as he refused it, the rebelmen hooted and clapped their chapped hands and threw up their sweaty nightcaps and uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused the crown that it had almost choked. तो बोले कि जब तीसरी बार भी वही था, लग रहा था कि वो हाथ हटाना नहीं चाहते. He was too gentler. Each time he was being gentler and gentler to remove his hand from the crown. और the third time जिसने वो refuse किया, all the people they were shouting, they were just clapping and shouting and hooting. और इसमें क्या हुआ, जो कॉमन मैन आसपास थे, they were workers. कोई कारपेंटर था, कोई आयरन स्मिथ था, कोई भी था, कॉबलर था, तो उनके जो गंदे कपड़े थे, सारा दिन काम किया हुआ जो कपड़ा था, पसीने वाला कपड़ा, तो उन्होंने उसको उतार के उस कपड़े से जो स्मेल आ रहा था, इट वॉज वेरी स्टिंकी, इट वॉज वेरी डर्टी, फुल ऑफ बैड स्मेल ऑलवेयर. Caesar refused the crown that it almost choked. Caesar, for he swooned and fell down at it. तो सीजर जो क्राउन को रिफ्यूज किया था, लोगों ने इस तरह से हल्ला किया, क्लैप किया, उनके कपड़ों से तक बदबू आ रही थी, उनके बॉडी से बदबू आ रही थी, और इसी स्मेल ने सीजर को चोक कर दिया, सीजर को बेहोश कर दिया, सीजर वहां गिर गया. And for my own part, I durst not laugh for fear of opening my lips and receiving the bad air. और कैसा क्या, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं डर के मारे मुंह ही नहीं खोला कि वो गंदा हवा जो है मेरे मुंह में घुस जाएगा. दैट बैड ब्रेथ, इट विल जस्ट बैड एयर, इट विल जस्ट गेट इनटू माय माउथ. तो इस डर के मारे मैंने मुंह खोला ही नहीं, मैंने हंसा ही नहीं, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी. Cassius, but soft I pray you, what did Caesar swoon? तो बोले कि सच में सीजर फेंट कर गया था, वो बेहोश हो गया था. दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि कैशियस ने बार बार सीजर के फिजिकल वीकनेस को सामने लेके आता है. ईच एंड एवरी टाइम ही ब्रिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम द फिजिकल वीकनेस ऑफ सीजर. And now when that Casca reports that Caesar has fainted in front of the public, now just Brutus want to make it to be sure of it that yes, तो Caesar is such a weak person कि इतने थोड़ा भीड़ भाड़ से, so public was there all around and he just fainted. Did he really faint? Casca. He fell down in the marketplace and foamed at mouth and was speechless. तो वो सिर्फ फेंट ही नहीं किया, the foam was coming, झाग निकल रहे थे मुंह से, और उसको कोई बात नहीं, was speechless, he cannot speak for some time. Brutus. It's very like he had the falling sickness. तो ब्रूटस बोला हाँ, उसको तो बीमारी है, is suffering from epilepsy. Cassius. No, Caesar hath it not, but you and I. And honest Casca, we have the falling sickness. अब Cassius इसी बात को दूसरी तरह से उसको समझाता है कि गिरने की बीमारी सीजर की नहीं है, वो उसका फिजिकल प्रॉब्लम है कि वो गिर जाता है, एक बीमारी है, लेकिन असल में तो बीमारी हम में है गिरने का. किसके सामने? सीजर के सामने हम लोग गिर जा रहे हैं, सीजर को बड़ा कर दे रहे हैं, सीजर को फेमस कर दे रहे हैं, और उसके सामने हम लोग झुक जा रहे हैं. कैस्का, आई नो नॉट व्हाट यू मीन बाय दैट, बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन. तुम्हारी ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, इतना हमको पता, हम देख के आए कि सीजर नीचे गिर गया था. If the tag-rag people did not clap him and hiss him according as he pleased and displeased them, as they used to do the players in the theater, I am no true man. बल्कि जो लोग उसके रिफ्यूज़ल पे, क्राउन के रिफ्यूज़ल पे वो लोग इतना हल्ला कर रहे थे, इतना मतलब खुश हो रहे थे, जैसे कि लोग थिएटर में जब कोई प्ले देखता है, प्लेयर्स के ऊपर जिस तरह से लोग चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ. ब्रूटस. What said he when he came unto himself? तो जब वो होश में आया तब सीजर ने क्या कहा? कैस्का. Mary, before he fell down, when he perceived the common herd was glad he refused the crown, he plucked me off his doublet and offered them his throat to cut. बल्कि गिरने के बाद नहीं, गिरने के पहले क्या कहा? गिरने के पहले क्या हुआ? ब्रूटस तो पूछा गिरने, वो अपने होश में आने के बाद क्या कहा? तो कैस्का ने कहा कि बिफोर फॉलिंग डाउन, गिरने से पहले
जब उसने बार बार क्राउन को रिफ्यूज किया, लोगों ने हल्ला किया, दे क्लैप, दे शाउटेड एट हिम, द पीपल वर वेरी प्लीज। तो लोगों को और प्लीज करने के लिए उसने अपने शर्ट का बटन खोल दिया एंड दे ऑफर्ड हिज बॉसम टू बी कट। मतलब वो अपने नेक को, अपने बॉसम को लोगों के सामने खोल दिया कि भाई तुम चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। मीन्स आई एम, मतलब अपने लोगों को दिखा रहा है कि ही इज सो हम्बल, ही इज सो डिवोटेड टू द पीपल ऑफ रोम दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट डेथ। एंड आई हैड बीन अ मैन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। और कैस्का क्या बोलता है कि चाहे मैं कोई भी काम करूं, मैन ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, if I would have not taken him at a word, I would might go to hell among the rocks. And so he fell. तो बोले कि अगर मैं कोई भी काम करता रहता हूँ, ठीक है, अगर मैं उसकी बात को अगर नहीं मानता तो मुझे हेल भेज दो, ठीक है, हेल भेज दो, जहाँ अच्छे लोग नहीं रहते, रॉक्स रहते हैं, रफ लोग, गंदे लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कैस्का को चांस मिलता तो वो सीजर को मार देता। अगर सीजर के डिसीजन को फॉलो नहीं करता है तो ही बेटर टू गो टू हेल, बट ही वांट्स टू फॉलो द डिसीजन ऑफ सीजर। एंड सो ही फेल। उसके बाद वो गिर जाता है। When he came to himself again, he said, if he had done or said anything amiss, he desired their worship to think it was infirmity. और लोग क्या बोलता है कि भाई गिरने के पहले या गिरने के बाद या उस समय अगर वो कुछ गलत सलत बोला है तो लोग उसको माफ कर। द पीपल मीन्स द पीपल शुड forgive him because it was his physical disability. The 3 or 4 benches where I stood cried, Allah's good soul. तो कुछ ladies जो खड़ी थी, they were shouting that he was a good man, he was a good soul, and forgave him with all their hearts. And there's no heed to be taken of them. If Caesar had stabbed their mothers, they would have done no less. तो लेकिन सीजर के ऊपर वो लोग इतने खुश थे, they called him good soul, and उसको लगता है कि अगर सीजर अगर उस समय उनके फैमिली में किसी का मर्डर भी कर दिया है, then also they would have forgiven Caesar. So that was the condition. That was how Caesar was becoming popular among the people of Rome. That is. तो इस सीजन से हमको पता चलता है कि what was the feeling of Brutus Cassius. तो धीरे धीरे जो फीलिंग्स है कि कितने लोग सीजर के अगेंस्ट में है, वो प्लॉट, वो प्लान क्या होने वाला है, हम लोग धीरे धीरे अब लोग देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग सीन 2 को खत्म करेंगे। विल ट्राई टू फिनिश द this scene 2 and we'll proceed on with the story. Okay, thank you children, and I hope you have liked the video, understood the chapter, understood the scene, and I hope you will like it and subscribe it. Thank you.